আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। 1948 খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবেও তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 1911 খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড থেকে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস উপাধি অর্জন করার পর কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা ও চিকিৎসার পেশা শুরু করেন। তার জন্ম ও মৃত্যু দিবস 1 জুলাই, যা বিরলতম ঘটনা একই দিন ও মাসের প্রথম তারিখে। তার কর্মজীবনকে শ্রদ্ধা জানায় গোটা ভারতবর্ষ এবং পালিত হয় ভারতীয় ডক্টরস ডে রূপে। আজ রবিবার সেই ন্যাশনাল ডক্টরস ডেকে সম্মান জানিয়ে আসানসোল শিল্পনগরীর কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত বরাকর আনন্দ কেয়ার অ্যান্ড কিওরের কর্ণধার ও স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রী সিবি মেহতাজির হাতে আমরা সম্মান তুলে দিলাম। প্রথমে ভিডিও ক্যামেরা পার্সন মিসেস শম্পা ব্যানার্জি পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রী সিবি মেহতাজিকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান এবং সিনিয়র রিপোর্টার পাপান ব্যানার্জি ডাক্তারবাবুর হাতে ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটি শংসাপত্র তুলে দেন। এরপর ডাক্তার শ্রী সিবি মেহতাজি নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত শিল্পাঞ্চলবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন। সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জি ও ভিডিও ক্যামেরা পার্সন শম্পা ব্যানার্জির রিপোর্ট, বরাকর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে। ও ডাক্তার, ও ডাক্তার, ও ডাক্তার, ও ডাক্তার, তুমি কত শত পাশ করে এসেছো বিলেতে ঘুরে মানুষের যন্ত্রণা ভোলাতে। ও ডাক্তার, ও ডাক্তার, বাঁচানোর ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, তুমি যদি মারো তবে কোথা যাই? অসহায় মানুষের তুমি তো সবকিছু করজোরে নিবেদন করছি তাই। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। আমি পাপান ব্যানার্জি আপনাদের সাথে রয়েছি। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আমাদের যে কুলটি বিধানসভার বরাকর যে শিল্পাঞ্চল রয়েছে, সেই শিল্পাঞ্চলে এখানে আনন্দ কেয়ার অ্যান্ড কিওর হোমিওপ্যাথিকে এখানে একজন বিশিষ্ট ডাক্তারবাবু এখানে আসেন। উনি ওনার চেম্বার করেন। উনি শুধু আমাদের বরাকরেই নয়, উনি আসানসোল ছাড়া উনি ঝাড়খণ্ড এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ওনার চেম্বার রয়েছে। উনি খুবই একজন ব্যস্ত ডাক্তারবাবু। আমরা জানি ওনার হাত দিয়ে অনেক মুমূর্ষু রোগীও অনেক সুস্থতা লাভ করেছে এবং এমন ক্রিটিক্যাল উনি রোগের চিকিৎসা এখান থেকে করেন। যারা ভেলোর থেকেও ঘুরে আসেন, যারা চিকিৎসা হয়তো করাতে পারেন না, তারাই এখানে আসেন ডাক্তারবাবুর কাছে এবং তারাও এখান থেকে নিরাময় হয়ে ফিরে যান। আমরা সেরকমই একজন ডাক্তারবাবুর পাশে আজকে বসতে পেরেছি, তার কাছে আমরা আসতে পেরে আমরাও খুবই কৃতজ্ঞ হয়েছি। ডাক্তারবাবু নমস্কার, ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেসে আপনাকে স্বাগত জানাই। নমস্তে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে গতকাল 1 জুলাই ডক্টরস ডে গেছে। এই ডক্টরস ডেটা আপনার কাছে কেমন, আপনি কি বলতে চাইবেন? আপনি একজন ডাক্তার এবং আপনি যখন মানুষের সেবা করেন, সেই মানুষগুলো সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়, কেমন লাগে? ফার্স্ট এইটুকুই জানতে চাইব। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन सर आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड और आपने इतना सुंदर आपने मुझे प्रेजेंट आउट किया है, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। और रहा डॉक्टर्स डे, देखिए हम लोग एक डॉक्टर हम लोग जब बनते हैं ना, तो हम लोग एक शपथ लेते हैं कि चाहे वो रात हो दिन हो, कोई समय नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई अगर पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को जो दर्द हम अपने फैमिली में महसूस करते हैं, अपने में महसूस करते हैं, तो वही दर्द हम लोग को दिखना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि जो हमारी अगर समय अगर 5 बजे या 6 बजे, तो नहीं मेरे को 5 बजे 6 बजे ही मेरे को पेशेंट देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ डॉक्टर्स के नाते हम लोग ने जो शपथ लिया उसको मैं हमेशा अपने को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास अगर पेशेंट हैं, चाहे मुझे रात में कॉल करे या फिर हमेशा कॉल करे या किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो वहाँ मुझे उनकी फीलिंग्स को समझ के मुझे उनको सेवा देनी है। और चाहे ये सेवा का ये था कि आज हम लोग के धनबाद में इतनी ब्रांचेस होने के बाद भी हम लोग बढ़ाकर आसनसोल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पेशेंट्स हम लोग के पास वहाँ जाते थे, बहुत सारे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ें होती थी एंड उनके एज अ रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने अपने आसनसोल में हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम लोग आनंद क्योर एंड केयर का एक सबसे बड़ा हम लोग का एक पॉलिसी था कि हम अपने पेशेंट को एक एज अ फैमिली के रूप में हम देखें और जितनी हम फैमिली ट्रीटमेंट्स के रूप में प्रोवाइड जो हम लोग अपने धनबाद क्षेत्र के एरियाज़
आसपास के एरियाज़ में करते, सेम हम लोग यहाँ पे अपने बंगाल्स में हम लोग प्रोवाइड करें और बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड ईश्वर का मैं ये आभारी हूँ कि आपको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ें हम लोग में ज़रूर डाली हमारी पूरी टीम मेंबर्स में कि हम लोग बहुत ही डेडिकेशन से हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं और यही डेडिकेशन से हम लोग हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश जरूर करेंगे। ডক্টরবাবু আরও একটা কথা আমরা জানতে চাইবো, এটা মানে সাধারণ মানুষদের জন্য, যে আমাদের যে গরমের যে সিজন ছিল সেই গরমের সিজনটা পেরিয়ে গিয়ে এখন রেনি সিজন ঢুকছে, তো এই রেনি সিজনে বাচ্চারা কেমন করে একটু টেক কেয়ার করবে, মা বাবারা কেমন করে বাচ্চাদের টেক কেয়ার করবে, বা কী কী রোগ থেকে প্রিভেনশন তারা করতে পারে, এই বিষয়ে যদি একটু কিছু বলেন সাধারণ মানুষকে। देखिए अभी का सीज़न बहुत बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि अभी का सीज़न जो है, जो मौसम जब चेंज करता है तो जनरली चाहे वो बच्चे हो, बड़े हों या वृद्ध हो, जनरली बच्ची और जो ओल्ड एज पर्सन उनको तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक रहता है। तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके बहुत अच्छे से रखना है। अब जैसे शरद गर्म के मौसम में बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पेट की प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ऐसे बाहर के कोई डाइट्स को ज़्यादा ऑयली चीज़, बटर, मतलब फैटी चीज़, ऑयली चीज़ को एकदम अवॉइड करना बेटर होता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, इस अभी जो प्रॉब्लम्स में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से उभरता है, तो स्किन प्रॉब्लम्स में तेज़ी से हम लोग यही लोगों को बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। आप बारिश के पानी से बचें, बारिश के जितने भी जो पानी जो जल जमाव होते हैं उनसे थोड़ा बचाव करें। जो पानी जो हम लोग इनटेक लेते हैं तो साफ़ पानी पिएँ, बहुत ज़रूरत हो तो आप या तो आप आरओ फ़िल्टर यूज़ करें या फिर बॉइल्ड पानी को बॉइल्ड करके यूज़ किया करें। बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट्स, ये मैं हमेशा बच्चों को एज अ बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग सबको बोलते हैं कि बाहर की चीज़ों को नहीं खाएं, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ों को खाएं और थोड़ी सी लापरवाही उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह। क्योंकि अभी हम लोग के जो पेशेंट है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हम लोग देख रहे हैं पेट के प्रॉब्लम से आ रहे हैं। अभी के सीज़न में जो एडल्ट स्पेस हैं उनके इस सीज़न में हम देखते थे पिंपल्स चीज़ें बढ़ जाती है, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं बोलूँगा कि अभी के सीज़न में बड़ा अच्छे से बचाव करें। अभी हेयर्स में बहुत केमिकल्स या बाहर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करें, कोई अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिनसे आपके हेयर्स भी मेंटेन रहे। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या ओल्ड पर्सन हो, इस मौसम में बहुत प्रिकॉशन करें, अच्छी सात्विक भोजन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, फाइबर्स ज़्यादा लिए, और अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो बाहर के चीज़ों को बंद करके घर के जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि अभी चीज़ों को लेकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करते। तो योगा प्राणायाम मेडिटेशन ज़रूर करें, छोटे से बच्चों को भी ज़रूर सिखाएं कि अभी उनको अगर टाइम मिले तो ज़रूर यूज़ करें। हाँ, सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर चीज़ों में अपना यूज़ किया हूँ कि विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के एज में, चाहे कि बारिश के मौसम में, ऐसे ही आजकल का हम लोग देखते हैं सिनेरियो, ये वर्ल्ड सिनेरियो है कि विटामिन डी बहुत तेज़ी से कमी आ रही, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हों या ओल्ड पर्सन हो। तो इस मौसम में बारिश में क्या होता है, विटामिन डी का मेन सोर्स सनलाइट होती है, तो अभी के मौसम सनलाइट तो मिलता ही नहीं है। तो हम लोग फिर भी लोगों को बोलते हैं कि अच्छे गुड सप्लीमेंट्स, अगर विटामिन डी है, बच्चों के अलग आते हैं, बड़ों के अलग आते हैं, तो उन सप्लीमेंट ज़रूर लें। इफ़ पॉसिबल अगर मॉर्निंग की धूप अगर सनलाइट मिलती है तो मॉर्निंग की धूप में 8 बजे के पहले वाली धूप में 20-25 मिनट ज़रूर बिताएं। एंड 2 सोर्स विटामिन डी का बहुत होता है, दैट इज़ आपको ऑरेंजेस एंड कीवी। तो ऑरेंज एंड कीवी ज़रूर लें, उससे विटामिन डी अगर मजबूत रहेगा, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी, बोन्स प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। আর একটা কথা আমি জানতে চাইবো, এটা আমার প্রায় শেষ প্রশ্ন। এখনকার দিনে সবথেকে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে ছেলে বা মেয়ে সে যেই হোক মাথা চুল পড়ে যাচ্ছে, যেমন আমারও অনেক সময় মাথা চুল পড়ে গেছে। সেরকম হোমিওপ্যাথিকে এখন নতুন কী চিকিৎসা আছে যে যাতে মানে চুল পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং রিগ্রোথ হতে পারে? আনন্দ কেয়ার অ্যান্ড কিওরে সেরকম কোনো মেডিসিন কিছু আছে স্যার? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आजकल के सबसे बड़ा जो मिडिल एज प्रॉब्लम्स है वो हेयर फॉलिंग है, एंड लोग बहुत परेशान हैं अपने फेशियल प्रॉब्लम्स को लेकर एंड हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम से लेके। हम लोगों ने अपने 15 साल की लाइफ में हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत समझा, और हम लोग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने आनंद क्योरिंग फार्मास्यूटिकल्स का हम लोगों ने स्थापना किया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो अभी मोर देन 54 प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं प्योर हर्बल से, जिसमें हमारे हेयर फॉलिंग के लिए हेयर किट है, जिसमें हम लोग बायोटिन टैबलेट देते हैं, हेयर शैम्पूज़ देते हैं, मुल्तानी मिट्टी शैम्पू प्रोवाइड करते हैं, सिरम।
जैसे इंडिविजुअल होते हैं उनके हर इंडिविजुअल का अपना अपने पैटर्न्स होता है हेयर फॉलिंग का। तो सबसे पहले हम लोग को जड़ पे जाना चाहिए कि वाई जो हेयर फॉलिंग इज अकरिंग, हम लोग हेयर फॉलिंग क्यों हो रहा है। जब उसकी आप जिस्ट में आप देखेंगे हेयर फॉलिंग क्यों हो रहा है, उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो देखिए, किसी के आपको लीवर की प्रॉब्लम से होती है, किसी को आपको स्किन की प्रॉब्लम से होती है, किसी को आयरन शॉर्ट की वजह से होती है, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो वी हैव टू फाइंड दैट कॉज। अब हम लोग उसके कारण को ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिसिन होम्योपैथी की प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड हम लोग के पास में आपके बहुत अच्छे शैम्पूज़ होते हैं, बहुत अच्छे आपको फूड सप्लीमेंट्स हैं आपको, जिसके वजह से आपको मुश्किल से 2 से 3 महीना में हेयर फॉलिंग रुक जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग ग्रोथ यूज़ करना चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रोथ में हम लोग ले आते हैं। আর একটা কথা জানতে চাইবো ডাক্তারবাবু, আপনি আমাদের যারা বরাকর শিল্পাঞ্চল বা কুলটি নেমাতপুর বরাকর ডিস্ট্রিক্টে যারা রয়েছে তারা আপনার কাছে এই বরাকর চেম্বারে এসে কোন কোন ডেটে এসে আপনার কাছে দেখাতে পারবে এবং টাইমিংটা যদি একটু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সবাইকে একটু জানিয়ে দেন। देखिए हमारा ये जो बराकर का जो क्लिनिक है ये आपको प्रतिदिन खुला रहता है एक्सेप्ट मंडे को बंद रहता है। आपको 10 बजे से 6 बजे तक ये खुली रहती है। इसके अलावा देखिए अभी हम लोग चूँकि हमारे धनबाद में हमारे 5 ब्रांचेस है, गिरिडीह में है, बराकर में है, आसनसोल में है, और इसके अलावा इंडियाज़ के लगभग हम मोर देन 55 सिटीज़ हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग आपके वर्ल्ड में हम लोग कनाडा, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, USA में दवा हमारी जाती रहती है। अब चूँकि बराकर में मैं यहाँ पे एवरी 15 डेज़ मतलब आपको फर्स्ट एंड थर्ड संडे को मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारा यहाँ जो नंबर है, आप उस नंबर को आप यहाँ के जो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल में आप जाके जस्ट डायल में जाके हमारे साइट में जाके आप यहाँ के नंबर को आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसके अलावा भी यहाँ पे कोई भी पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग वहीं से, हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है, डॉक्टर्स की टीम वहाँ से ऑपरेट कर लेती हैं। फिर हम लोग यहाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके हम लोग यहाँ पे मेडिसिन दे देते हैं। ऐसे भी कोई पर्सन जो आ नहीं पाते हैं, हम लोग उनको लिए घर होम डिलीवरी की सुविधा रखे हैं, उनको घर पे भी हम लोग दवा भिजवा देते हैं। ধন্যবাদ। না, যেমন কি আপনারা এখানে দেখলেন যে আমাদের যিনি ডাক্তারবাবু রয়েছেন ডক্টর CB মেহতা, উনি এখানে প্রতি রবিবার এবং প্রতি মাসের যে প্রথম এবং শেষ যে 15 দিন অন্তরে যে রবিবারটা পড়ে ওইখানে উনি আজকে বরাকরে আসেন। আর যারা যারা ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে চাইবেন তারা রেগুলারই বরাকরে এসে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং এখান থেকে এসে তারা তাদের প্রয়োজন মতো কনসাল্ট করে, ডাক্তারবাবুর সাথে কনসাল্ট করে তারা তাদের ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন। দুটো কথা বলে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকে পর্ব শেষ করব। ডাক্তারবাবু যেমন ডাক্তারবাবুদের কাছে আমরা যেমন একটা আশা নিয়ে আসি প্রতিটা রোগী, এবং প্রতিটা মানুষ যখন এখান থেকে ভালো হয়ে ফিরে যায় তারা হয়তো অনেকেই ডাক্তারবাবুকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু অনেক সময় হয় ডাক্তারবাবুদের ওপরে রুগীরা চড়াও হয় বা ডাক্তারবাবুদেরকে তারা অসম্মান করেন। এই জিনিসগুলো আপনারা করবেন না। রুগীরা হাসপাতালে ভর্তি হলেও অনেক সময় ডাক্তারবাবুদের হাতে কিছু মতো করার থাকে না। সেই সিচুয়েশানগুলোতে আমরা অনুরোধ করব সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে এবং সুস্থ নাগরিক হিসেবে যে আপনারা হসপিটাল ভাঙচুর করবেন না এবং ডাক্তারবাবুদের ওপর কোনো রকম অ্যাটাক বা কোনো তির্যক মন্তব্য করবেন না, কারণ ওনারাও আপনাদেরকে দিনরাত পরিষেবা দিচ্ছেন, ওনাদের ফ্যামিলিকে ছেড়ে দিও। শুধু জাস্ট আর একটা কথা জানতে চাইব ডাক্তারবাবু, আপনি কি বলবেন, এটা কি করা উচিত যারা হাসপাতাল ভাঙচুর করে বা যেসব রোগীরা মানে অধৈর্য হয়ে এরকম কাণ্ড ঘটায়, তাদের জন্য আপনি কোনো মেসেজ দেবেন? देखिए मैं उनकी फीलिंग को समझता हूँ। अगर कोई भी किसी की हादसा हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो पर्सन बहुत जल्दी उत्साह मतलब उग्र हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और डॉक्टर्स के ऊपर दोषारोपण करना मतलब उनको ऊपर दोष देते हैं। देखिए मैं इतना बता रहा हूँ कि मैक्सिमम डॉक्टर्स, कोई भी ऐसा डॉक्टर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग कभी भी, कोई डॉक्टर्स नहीं चाहता है कि कोई भी डॉक्टर्स किसी मरीज़ की जान चली जाए। हम लोग कभी भी नहीं चाहते किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग ऐसे हम लोग जब सोते हैं ना तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि वो मरीज़ कैसा है, वो मरीज़ का कैसा है। हम लोग कभी कभी ऐसा भी घटना होती है कि हम लोग सुबह से उठ के पहले उसको फ़ोन करते हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर्स ऐसा नहीं चाहता कि उसके मरीज़ को कोई भी नुकसान हो जाए, और कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन देखिए कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है जो डॉक्टर्स या एकाएक पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कुछ हादसे हो जाते हैं। तो उसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों से कि वो समझे, उस फीलिंग को समझे, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बहुत दिन रात सेवा करते हैं लोगों के लिए। तो वो समझे कि वो
बहुत जल्दी उग्र ना हो। कुछ कारण ज़रूर होता है जिसकी वजह से उनकी मिस हैपनिंग हो जाती है, बट कोई ये डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके हर कोई मरीज़ कोई भी एक हादसे का शिकार बने। हर डॉक्टर अपना बेस्ट देना चाहता है और मरीज़ की जब तक लास्ट हो वो बचाना चाहता है। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাদেরকে যে আজকে মূল্যবান আপনার যে সময়টুকু দিলেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ক্যামেরা পার্সন শম্পা ব্যানার্জির সাথে পাপান ব্যানার্জি, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান জেলা।